stampede occurred at the Mahakumbh Mela, which is underway in Prayagraj. Let's tell you, at least 18 devotees have been injured and ambulances were rushed to the spot. Prime Minister Modi also spoke with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath twice about the situation. But what we're picking up is that there was a large crowd at the Sangam Nose due to the second Amrit Snan. In fact, the Amrit Snan on Mauni Amavasya is the most significant ritual of the Mahakumbh. Now, heavy police deployment has been made across key entry and exit points. The stampede-like situation is concerned. What we are learning through our sources in the central hospital is that as many as 30 to 40 devotees have received injuries, and all of them are receiving treatment in the central hospital. That is not far from this place. But let me give you a sense of what the situation on the ground looks like. This area earlier was designated for akharas. This was specially for the procession of akharas. But now, as you can see, this has been opened for general public because of the crowd management. There was a lot of crowd in the morning, and now just to make sure that that there is not much crowd in one area. Now this specific designated spot for akharas has been opened for public. In the visuals, let me show you millions and millions, sea of devotees here you can see, and just to control the crowd, now this specific area that was designated for procession of akharas has now been opened for public, and this has happened after the stampede-like situation arose in the morning. And what we are learning is around 40 devotees have received injuries. They all have been shifted to the central hospital, which is more than a kilometer away from this specific location. They all are receiving treatment, but as per our sources in the central hospital, till now no loss of life has been reported so far. So that is a fortunate news, and thankfully no loss of life has been reported so far. But as far as the injuries are concerned, 40 people have received injuries, and they all are receiving the treatment right now. अखाड़ा परिषद की ओर से जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही फैसला लिया गया है, क्योंकि देखिए, अगर संगम क्षेत्र में जब भगदड़ के बाद पहले ही लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल है, और उस बीच में जब नागा साधु और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब देश के अलग अलग कोने से पहुंचे हुए जो श्रद्धालु, सभी अखाड़ों के श्रद्धालु वहां पहुंचते, तो निश्चित तौर पे जो हालात हैं वो और थोड़े से बिगड़ सकते थे। और यही कारण है कि चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो लगातार सभी अखाड़ों के संपर्क में थे, यानी 13 अखाड़ों के संपर्क में थे। और जब हादसा हुआ और हादसे के बाद सभी लोगों की मीटिंग हुई होती बताया जा रहा है, और इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो आज अमृत स्नान, जो दूसरा अमृत स्नान है जिसका बहुत महत्व होता है, उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। और अब जो अगला स्नान होगा, यानी जो बसंत पंचमी के दिन जो तीसरा स्नान होगा, उसमें ये सभी जो साधु संत हैं वो तीसरा स्नान करेंगे। तो अखाड़ा परिषद के एक सुर से सभी लोगों ने इसमें आम सहमति जताई है। और इसके बाद ये दो ही बगल से भागदार में एक भीड़ सामने से आ रही थी, आप लोग यहाँ से आ रहे बार। अच्छा, कुछ बैरिकेड वगैरह टूटा था वहाँ पे? पुलिस थी? नहीं, कोई नहीं टूटा। पुलिस नहीं थी वहाँ? हाँ, नहीं। एम्बुलेंस को आने में कितना टाइम लगा? कम से कम 1 घंटा। हमें आध घंटा तो हमारी मोड़ी फोन ही लगा उतरे। 1:30 बजे ये हुआ है, तो एम्बुलेंस कितने बजे यहाँ पे लेके आई है? अब जो अपन देखो 3 बजे के लगभग से 3:30 बजे की, नहीं 3 साढ़े 3 अंदर यहाँ पे आप आए। हाँ। तो कौन लगते हैं आपके जो यहाँ पे अभी भर्ती है? बहू है? भर्ती नहीं है, खत्म हो गई। खत्म हो गई? ये डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर ने नहीं बताया, उन्होंने डॉक्टर ने कुछ बताया, होता ही हो गई थी, तो हमने था तो लो, उसमें कुछ नहीं था, सांस नहीं आ रही थी। हाँ। तो अभी डॉक्टर ने आपको कुछ आपसे बात की है? कुछ नहीं की। अच्छा। हाँ। तो आपकी फैमिली का सिर्फ एक ही थे, आपकी बहू? आपकी सिर्फ बहू थी? हाँ, हमारी बहू। अच्छा। कितने लोग थे आप वहाँ पे? 10-15 लोग थे साथ में। अगर आप थोड़ा सा बता पाए, आई नो अभी थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए ये सब बताना, 1-1:30 बजे क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ सिचुएशन, कहाँ था ये? संगम के पास? संगम के पास में 55 नंबर खम्बा के पास में। 55 नंबर खम्बा संगम के पास? हाँ। अच्छा। सामने से भीड़ आ रही थी? दो ही बगल से आती, बहुत तो अलग जाने की रास्ता, नहीं आने की रास्ता, बहुत इकट्ठी थी सब। तो आपने वहाँ पे देखी होगी सिचुएशन, आपको क्या लगता है कितने लोग हम खुद पर, हमने 2 जन हो तो हम आप कैसे बचे? आपने खुद को कैसे अपना बचाव किया? एक बहू, हम एक पकड़े थे एक को, और एक हमारी जलसी पकड़े थी, सो खचोल लिया बाहर, चली आए। फिर न नहाया न कुछ नहीं नहा पाए। फिर कहाँ भागीदार में कुछ नहीं। अभी डॉक्टर आपसे बात कर रहे हैं, कुछ अपडेट? कुछ नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, आपने ट्राई किया यहाँ क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे, काफी यार सिक्योरिटी। नहीं बे कत्ते बाहर बैठो तुम बाबा। तो अभी तो काफी टाइम हो गया, 3 से लेके अभी तो 8 बज गए। आपके भी कोई है यहाँ पे अंदर? जी साथ के हैं हमारे। साथ में ही है, तो आप भी होंगे वहाँ पे। क्या कुछ सिचुएशन थी अगर बता और कुछ पाए? नहीं, यही था, भीड़ थी दोनों तरफ से। जो कारण भाव और कुछ नहीं था। धक्का मुक्की हुई थी बहुत? अरे धक्का मतलब भीड़ भाड़ दोनों तरफ से। अच्छा, और न तो वजह क्या रही होगी कि इतनी धक्का मुक्की होगी? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं काफी भीड़ है। उन्होंने तो यहाँ से धक्का लगाया ऐसे ऐसे जब और समझ ना जो दब गओ और का। आप भी इनके साथ हैं? आपने भी देखा था क्या हुआ था वहाँ पे? क्या कुछ अगर बता दूर पाए? दूर ऐसे बिरदे बिरदे होगा थी। अच्छा, धक्का मुक्के में गायब है तो दो जन झगड़ा में तो लोग गिर गए थे उसकी वजह? गिरेगा जो करे जैसा लगो दब का कुछ गए, अच्छा, कोई तो व्यवस्था नहीं थी। तो आपने अपना बचाव कैसे किया? अरे बहुत बड़ी दिया बचाव करो लंगड़ा आदि गोड़ टूटू हमारा खुद। पैर में लगी आपके? अरे रात डरी मतलब बच लगे। आप भी थे वहाँ पे? हाँ हम भी थे। क्या कुछ देखा आपने? हमने कुछ नहीं देखा। All right, that was my colleague Akanksha Khajuria getting more details as to what really transpired there from certain of the devotees who were present. Let's listen once again to more ground reports that she's getting. So these are the people, in fact, who were eyewitnesses to that specific incident, the stampede-like situation that took place there. They have told us that this stampede-like situation arose around 1:30 in the night, just ahead of the Amrit Snan Pratibha. All right, Akanksha getting us those details, like I did mention about the aspect of what really transpired there. First-hand witnesses also talking about the particular incident. But you're, of course, looking at different set of visuals on your screens. This is, unfortunately, after that stampede-like situation did pan out, which is why they were being rushed to ambulances. Having said that, look at the visuals in your screens, which I understand are live visuals that are coming in from the Mahakumbh, and you can look at the number of people who have gathered today. More importantly, this becomes a lot more important considering the fact that today was an auspicious day as well. This was the second Amrit Snan at Mahakumbh, but right now we're picking up is that over 25 devotees were injured in the stampede-like situation. More importantly, you're looking at live visuals right now from ground zero of the Mahakumbh, and right after this stampede was reported, we are given to understand that Prime Minister Modi did speak with Chief Minister Yogi Adityanath as well as far as what happened. But the aftermath of this incident is that we are picking up that the security has also been tightened in the view of the same. Having said that, there are many more reactions that have come in from attendees of the Mahakumbh in Prayagraj. Let's listen into those. एकदम से पब्लिक फंसी, एकदम से भगदड़ भई है, आने जाने का रास्ता नहीं मिल पाया रहा। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने भगदड़ की है, शासन भगदड़ हुई है, वैसे नहीं हुई है भगदड़, बड़े आराम से लोग जा रहे हैं। एकदम से एक तो ये प्रशासन की ये कमी थी कि उन्होंने वन वे खोल रखा था, रोड जो था ना एक ही रोड खोल रखा था। क्या है वहाँ ना तो कोई पुलिस थी, कोई यानी वो नहीं थी कि पुलिस उसको हटाए, कोई नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आया। आपने देखा होगा जो सुबह जो भी कुछ हुआ है, और इसीलिए सरहित को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि आपने देखा होगा हमारे अखाड़े में पूरे सिंहासन लगे हैं और जितने संत महात्मा सभी स्नान के लिए तैयार थे और नागा सन्यासी हमारे जितने थे सभी जुलूस में, देवता हमारे कंधे पे थे। जब हमें सुनने में आया है कि जो ये घटना घटी है, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए तुरंत निर्णय लिया कि हम आज का मौनी अमावस्या का स्नान नहीं करेंगे। आज मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था की वजह से, श्रद्धालुओं की भगदड़ से और दम घुटने से जो श्रद्धालुओं की जान की हताहत हुई है, उसके लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, मंत्री देश विदेश में निमंत्रण बांट रहे थे महाकुंभ का। महाकुंभ में सब अपने आप आते हैं, किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार सिर्फ ब्रांडिंग में लगी रही। महाकुंभ के लिए आवंटित बजट को अधिकारी भ्रष्टाचार का पलीता लगाते रहे। मुख्यमंत्री जी
तैयारियों की अंतिम तिथि 4 बार बढ़ाते रहे, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पाए। आज अव्यवस्था का आलम यह है कि तमाम श्रद्धालुओं के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और संतों ने भी इसलिए स्नान का बाइकाट किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकुंभ को अपने फोटो और वीडियो सेशन का अड्डा बनाकर रख दिया है। सिर्फ वीआईपी कल्चर। हमारी चिंता पहले दिन से तैयारियों को लेकर है और हमने सवाल खड़े किए कि वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो, महाकुंभ में श्रद्धालुओं, जो आम श्रद्धालु, उसके लिए इंतजाम हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने किसी सुझाव को नहीं माना। उसके साथ साथ जो जरूरी इंतजाम थे वो भी नहीं किए। आज इसी वजह से घटना हुई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम नुकसान हो। भाजपा सरकार ने महाकुंभ का पूरी तरीके से मजाक और अव्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं को उनके ऊपर छोड़कर रख दिया है। मैं इस समय मां भगवती के तट पर हूं और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। प्रयागराज संगम से आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूं कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। Sangam Ghat, because since morning what we are witnessing here, that everybody is trying to move towards the Sangam nose. This entire stretch of Mahakumbh is 12 kilometers long, and hence now the UP Chief Minister has appealed to people to take holy dip wherever they are, whichever ghat they are at, and not attempt to go to specifically go to the Sangam Ghat. But as far as the stampede is concerned, what we are learning is that all those who are injured are currently present inside this central hospital. This is the main hospital of the Mahakumbh Mela. But what we are also learning through the family members of those who are injured is that few of them have been also moved to one hospital that is in Prayagraj, Swaroop Rani Hospital. Let me go across and speak to them because just a while back they spoke to the doctors here. क्या बात हुई थी आपके डॉक्टर से अभी? क्या बोला? हमारी बॉडी मानो बोला बता दें कि कहाँ है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं रहे। 8-9 किलोमीटर दूर है। सुबह हमने किया स्वरूप रानी हॉस्पिटल। आपसे बात की और डॉक्टर ने क्या बोला आपको? स्वरूप रानी हॉस्पिटल मूव कर दिया। क्यों मूव किया है यहाँ से, कुछ बताया? क्या पता, नेतागिरी बताओ। बताया नहीं। बताने अच्छे से नहीं रहा है। सही नहीं बता रहा है, ऐसा बोलता है। अच्छा, कोई डिसीजन सही नहीं लेते हैं। अच्छा, ठीक से नहीं बता रहे हैं डॉक्टर, क्लैरिटी नहीं। कर रहा। मैडम मैं आपसे बात करना चाहूंगी। आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए बात करना।
क्या हुआ था? आप थे वहाँ पे जब ये भगदड़ हुई? मूड पर लगो हमारा तो गुड़िया बोल नहीं पा रहे हम। ठीक है, समझते हैं. She is not able to speak. She is also part of the family. But as far as those injured are concerned, what we are learning that they are inside. Few of them is what we are learning. They've been moved to the Swaroop Rani Hospital. But all of them are, most of them here right now are getting the treatment.